Hello everyone and welcome to my channel. So here we are with our very new video on day 34 of Heat Code 75 days challenge. और आज का जो हम लोग का वीडियो होने वाला है वो भी हम लोग का ट्री से रिलेटेड होने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव वॉच्ड द लास्ट वीडियो as that is a video in which I have like try to cover all the foundation parts of tree, like what is binary tree, how like we do DFS. Please make sure that you have watched that video. So it will be very easy for you to understand this video because I'm not going to repeat everything that we have already seen in our last video. So make sure to watch that video to understand this video in a very simple way. So yeah, let's see and let's look into it and let's directly jump into our problem system. But before that, please guys try to do like and subscribe and make sure to share it on LinkedIn and with your friend circle. It will help me and help others as well. So let's create a community and let's build and grow together. So let's start. So the problem statement for today is leaf similar trees. So leaf similar trees, what are these? First, let's understand that. Consider all the leaves of a binary tree from left to right order. Okay, so it is given, it should be from left to right order. The values of those leaves from leaf value sequence form a leaf value sequence. Okay, so like the values of those leaves form a leaf value sequence. Okay, so like suppose 6, 7, 4, 9, 8. Okay, so like the value of those leaves, so make a sequence of that. For example, in the given tree above, the leaf value sequence is 6, 7, 4, 9, 8, right, from left to right. Okay, so two binary trees are considered leaf similar if their leaf value sequence is same. So हम लोग को सिंपल दिया हुआ है, दो बाइनरी ट्री दिया रहेगा हम लोग को. Okay, like yes, two binary trees will be given, and what we need to do, we need to find a sequence first. Okay, sequence of the leaf, and what we need to do, we need to check if that sequence is correct, we will return true, otherwise we will return false. That is the thing. So 6, 7, 4, 9, 8, 6, 7, 4, 9, 8. Yes, it is. So it is a leaf similar value. 2, 3, 3, 2. It is not. Although we can see that the numbers are same, but the order is different, so it is false. Okay, so लीफ का बात आया और हम लोग को क्या करना है, लीफ को एक सीक्वेंस में ट्रैवर्स करना है. तो इससे हमको याद आ रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि लीफ हम लोग कहाँ पे सबसे पहले पहुंचते हैं, लीफ पे. So that is our depth first search. If you have seen my last video, you will be able to quickly guess it. So basically हम लोग क्या करते हैं, पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग का लीफ पे हम लोग पहले पहुंचते हैं. So we'll again understand everything from scratch and we'll break this problem statement first. Okay, so like yeah, so पहले कुछ ड्राई रन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखते हैं. लेट मी जस्ट गेट अ स्क्रीनशॉट. सो लेट्स सी दिस एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट. सो बेसिकली आप देख सकते हो, ये जो दो ट्रीज दिया हुआ है हमारे पास, ये लीफ सिमिलर है. कैसे? तो अगर हम इसका लीफ सीक्वेंस निकाले, 6, 7, 4, यहाँ पे 6 है हमारा, 7, 4, 9, 8. इसका क्या होगा हमारा लीफ सीक्वेंस? 6, 7, 4, 9 एंड 8. अब स्टेप्स देखते क्या फॉलो करने वाले हैं हम लोग. गेट द लीफ सीक्वेंस. सो बेसिकली हम लोग को जो भी ट्री दिया रहेगा उसका लीफ सीक्वेंस पहले निकालना है. फाइनल मोटिव इज दैट. ओके, उसके लिए हम लोग डीएफएस यूज करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग सबसे पहले लीफ तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वो करते हैं. तो लेवल वाइज जाने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग को लीफ वाइज जाएंगे, ट्रैवर्स करेंगे. सो स्टार्ट एट 3, देन गो टिल द लेफ्ट नोड का लीफ. ठीक है, सो गो लेफ्ट टू 5, देन अगेन लेफ्ट नोड है प्रेजेंट, तो हाँ है, तो 6. अब कोई नोड नहीं है प्रेजेंट, तो अपेंड कर दो उसको. ठीक है, एक एम्प्टी एरे लेंगे. सपोज आई एक्सप्लेन द अप्रोच. विल टेक एन एम्प्टी एरे. हम लोग क्या करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे.
इफ नोड डॉट लेफ्ट प्रेजेंट गो, देन अगेन रिकर्सिवली नोड डॉट लेफ्ट, उसको रूट बना दो, लाइक सब ट्री बनाते हैं ना डीएफएस में, क्या करते थे अपन, सब ट्री बनाते थे, इसको फिर सब ट्री बना देंगे, फिर इसको रूट बना देंगे, तो 5 रूट बना, फिर उसका लेफ्ट है, लेफ्ट सब ट्री बनाएंगे 6 को, अब तो वो खुद एक रूट है, तो क्या उसका चाइल्ड है प्रेजेंट, नहीं है, तो उसको अपेंड कर देंगे अपन, ठीक है। फिर बाद में जाएंगे अपन 5 के पास, क्या उसका राइट नोड प्रेजेंट है, तो हाँ राइट नोड प्रेजेंट है, वी हैव इट। देन फिर राइट नोड का लेफ्ट नोड देखेंगे, लेफ्ट नोड प्रेजेंट है, हाँ है, और लेफ्ट नोड क्या, हम लोग का लेफ्ट नोड जो है, इज इट हैविंग चाइल्ड, नो, सो विल अपेंड इट, ठीक है, यही है सिंपल तरीका। ओके, स्टेप्स भी देखो आप, 5 पे गए, गो लेफ्ट टू 6, एड 6, ठीक है, बैक ट्रैक टू 5, गो राइट टू 2, देन एड 2, गो लेफ्ट टू 7, एड 7, लाइक वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कुछ नहीं मिला ऐड कर दिए, बैक ट्रैक करो, ठीक है। सो लीव सीक्वेंस अपना 6 7 4 9, लाइक वाइज हम लोग स्टेप 2 भी करेंगे। ये क्लियरली, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे बैक ट्रैक कर रहे हैं। अगर आपने पहला, इससे पहले का वीडियो देखा है, प्लीज आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट था वो लास्ट वीडियो। वो बहुत लेंदी वीडियो है क्योंकि उसमें बहुत बहुत कंटेंट भरा हुआ है, मेक श्योर टू वॉच दैट, बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोड, क्योंकि अगर आपने डीएफएस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको उसमें ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है। ओके, सो लाइक हाँ, ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के केस में क्या होगा, दो नोड, दो ट्रीज को ट्रैवर्स करना है, तो ओ एन प्लस एम, नंबर ऑफ नोड्स ऑफ दिस रूट, दिस ट्री, नंबर ऑफ नोड्स ऑफ दिस ट्री, हो जाएगा ओ एन प्लस एम, that will be our time complexity. Okay, so let's start with our code. बेसिक कंडीशन वही रहेगा कि अगर रूट हमारा लाइक बेसिकली लीफ सिमिलर हम लोग को करना है, ठीक है। सो हम लोग को रूट दिया हुआ है, 2 रूट दिया रहेगा। ओके, सो एक अपन क्या कर लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे अपन। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फंक्शन। ओके, डेफ गेट लीव्स, जो कि रिटर्न करेगा अपन को क्या, लीव्स। ओके, लीव्स, यहाँ पे अपन बस रूट भेजेंगे, हम लोग को और कोई चीज से नहीं मतलब है, ठीक है। रूट आया, अपन को क्या चेक करना है कि क्या वो रूट का लेफ्ट है, राइट है, और उसको अपेंड करते जाना है, सिंपल, ठीक है। तो लीव्स बना के अपन को भेजना है, तो लीव्स पहले एम्प्टी रहेगा। ओके, हर एक बार हम लीव्स को रिटर्न करेंगे। ओके, सो एक एम्प्टी एरे, जैसे कि मैंने मेंशन किया था, एक एम्प्टी एरे बनाएंगे, और उसके बाद क्या चेक करना है अपन को, डेफ, अपन एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन डेफ डीएफएस, विच विल बी आवर डेप्थ फर्स्ट सर्च का फंक्शन, जहां पे अपन क्या करेंगे, नोड भेजेंगे, नोड। ओके, अब अपन को क्या चेक करना है कि अगर नोड है ही नहीं, ठीक है, इफ नॉट नोड, नल है अगर, तो रिटर्न 0, लाइक रिटर्न कर दो, 0 भी रिटर्न नहीं करना, रिटर्न मतलब वहां से रिवर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अगर एग्जिस्ट करता है, तो इफ हम लोग का नॉट नोड, लाइक अगर लेफ्ट और राइट नहीं है, लीफ है वो, ठीक है। मेन मोटिव कब अपेंड करना होता है, जब लेफ्ट और राइट ना हो, इफ नॉट लेफ्ट एंड नॉट नोड डॉट राइट, तो उस केस में अपन को क्या करना होता है, लीव्स जो एरे है, ये एरे जो है हमारा, उसमें अपेंड कर दो, डॉट अपेंड, क्या करना है अपन को, नोड को अपेंड कर देना है, राइट। अपेंड हुआ, अगर है प्रेजेंट, ये कंडीशन में जब नहीं जाता है, ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट, हम लोग को लेकिन नोड को प्रेजेंट ये अपेंड नहीं करना है लीव्स में, रिमेंबर वी नीड टू क्रिएट अ लीव वैल्यू सीक्वेंस, सो इसका वैल्यू को एरे में स्टोर करना है, डॉट वैल, ठीक है। अगर इस कंडीशन में नहीं जाता है, उस केस में अपन क्या करेंगे फिर, तो डीएफएस अपन लोग फिर उस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, लेफ्ट सब ट्री बनाएंगे, तो नोड डॉट लेफ्ट डीएफएस ऑफ नोड डॉट राइट। जिन लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है, जस्ट गो एंड वॉच द लास्ट वीडियो। डीएफएस क्या हुआ, अपना फंक्शन हुआ डेप्थ फर्स्ट सर्च का, लेफ्ट सब ट्री बना दिए, राइट सब ट्री, अब लेफ्ट सब ट्री में क्या हो रहा है, नोड डॉट लेफ्ट अपना रूट बन गया, राइट, और उसका हम लोग फिर से अपेंड कर रहे हैं। ओके,
नाउ एट द एंड अपन को क्या करना है, यहाँ पे रूट को कॉल करना है। तो dfs ये फंक्शन कब कॉल होगा, कहीं पे कॉल ही नहीं किया गया है, तो वो उसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ये जो पैरामीटर आया है यहाँ पे रूट को पास कर देना है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और रिटर्न कर देना है अपन को लीव्स को, राइट, क्योंकि लीव्स में अपना वैल्यू है प्रेजेंट। ओके, सो अब अपन को फाइनल कॉल करना है इस फंक्शन को, ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए अपन को क्या करना होगा, रिटर्न, व्हाट वी नीड टू डू, रिटर्न ट्रू और फॉल्स इफ this one and this one is same. So return if हमारा get leaves of root 1, okay, equal to हमारा get leaves of root 2। इसको क्लीन बनाने के लिए मैंने ये फंक्शन को बनाया था, ताकि आप देख सकते हो अगर एक फंक्शन हम बना दिए हैं तो हमको क्या करना पड़ा, बस ये पैरामीटर ये रूट 1 को पास किए, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, इटरेटिवली डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग का लेफ्ट राइट का सब ट्री का हम लोग अपेंड करते गए, ठीक है। अगेन मैं समझाऊंगी एक बार, डोंट वरी। रूट 1 में हमारा लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, और राइट सब ट्री, दोनों को ट्रैवर्स करते हुए एक एक बार उसको रूट बनाते हुए हम लोग लीव्स को अपेंड करते गए, राइट। तो यहाँ पे गेट लीव्स हम लोग का एक बार कॉल हुआ फॉर रूट 1 एंड गेट लीव्स एक बार कॉल हुआ फॉर रूट 2, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ से हम लोग लीव सीक्वेंस फॉर्म कर लिए एंड चेक किए, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, ठीक है, बुलियन वैल्यू। क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। So basically those who have not watched the last video, I'm again explaining it to you guys. हम लोग का फंक्शन है def dfs, ये क्या हो रहा है, सिंपल डेप्थ फर्स्ट सर्च का फंक्शन है। एक नोड ले रहा है, अगर वो नोड प्रेजेंट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बेस कंडीशन इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो, रिटर्न कर दो, ठीक है। इफ नॉट नोड लेफ्ट, हम लोग का जो कंडीशन था, हम लोग को लीव को अपेंड करना है, तो अगर उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है, दैट मींस दैट इज द लीव, राइट। सो व्हाट यू विल डू, लीव्स डॉट अपेंड में वैल्यू को अपेंड कर दो। अगर है चाइल्ड तो हम लोग क्या करना है, लेफ्ट सीक्वेंस में घुसते जाओ, तो फिर डीएफएस में नोड डॉट लेफ्ट को हम लोग कॉल किए, जब तक वो नल ना हो जाए हम लोग एंड तक जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग एंड पे पहुंचे हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो लीव है तो फिर अपेंड कर दिए, फिर बैक ट्रैक होगा, राइट में जाएंगे, नोड का राइट, वो जो नोड जिससे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो नोड डॉट राइट। सो लाइकवाइज हम लोग सब ट्री बनाए इसमें, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इस फंक्शन में हम लोग यहाँ पे इस डीएफएस को कॉल किए, ओके। आई होप इट इज क्लियर, लेट्स रन दिस and by this we will be able to, and yes, our test cases has been accepted, let's submit it, let's see what happens. And yes, we have done it. So our time complexity will be the number of nodes in root, like the first tree and the second tree, n plus m, big O of n plus n, m will be the, like n is the number of nodes of first tree, m is the number of nodes of the second tree, sum n plus m, big O of n plus m will be the time complexity. So don't forget to like, subscribe, share it on LinkedIn and give your reviews. Thank you. See you. Bye bye.